हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल बताया, लीनियर चार्ज बताया, शीट के कारण बताया और प्लेट के कारण बताया, पैरेलल प्लेट के कारण बताया। हमने कहा था कि अगर वो सॉलिड स्फीयर हो, उस सॉलिड स्फीयर का मतलब नॉन कंडक्टिव हो, केस बदल जाएगी अंदर की तरफ। बाहर और सरफेस पर केस वही रहेगी जैसी केस थी स्फेरिकल शेल की। यहाँ पर क्या केस होगी? अगर आर रेडियस वाले किसी स्फीयर को चार्ज क्यू दे दिया गया जिसका वॉल्यूम भी टोटल चार्ज पूरे वॉल्यूम में रहेगा। कोई गॉसियन सरफेस खींच लिया, डॉटेड लाइन क्या है? गॉसियन सरफेस है जिसमें वॉल्यूम भी डैश ले लिया और चार्ज क्यू डैश। चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक कांस्टेंट है, Q upon V is equal to Q dash upon V, Q dash is equal to Q V dash upon V. It is our aim to find out the Q dash, that is the charge enclosed within the Gaussian surface. Now apply the Gauss theorem, A dot ds is equal to Q dash upon, यही चेंज कर जाएगा Q dash upon epsilon naught, क्योंकि चार्ज उसमें कितना इनक्लोज है? Q dash. Put the value of Q dash, Q V dash upon V into epsilon naught. यहाँ पर भी अगर हम ds और E, if we consider the area ds and the electric field both are in same direction outward, Gauss theorem के बाद the area of the Gaussian surface is 4 pi r square. So 4 pi r square is equal to Q V dash 4.3 pi r cube divided by V to the original volume 4.3 pi r capital R cube epsilon naught. Here 4.3 pi cancelled out, Q r cube upon epsilon naught capital R cube is equal to Q r cube 4 pi r square को राइट में कर दिया, Q r is equal to 4 pi r cube epsilon naught. It is the general form of the electric field inside the sphere. Q constant, R constant, this quantity is constant, small r is variable quantity. So E proportion R. इसको दूसरे फॉर्म में भी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्म है, पूछा जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था। इसी डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दिया, Q स्मॉल r डिवाइडेड बाय 3 into 4/3 पाई r क्यूब epsilon naught, Q r डिवाइडेड बाय 4.3 pi r cube volume of the sphere. Now Q upon V is equal to the volume charge density rho. So it is the rho r upon 3 epsilon naught. Here we see that E is also proportional in both cases, in the first case or the second case. Expression is different, form is different. If we plot the graph between the distance and the electric field, certainly inside, in the previous lecture, in case of cell, from O to R, field was 0 inside. Here, from O to R, inside, field is directly proportional to the R. Similar case, उस सिलेंडर के लिए भी हमने कहा था, अगर कोई सिलेंडर दे दिया जाएगा लेकिन वो सॉलिड सिलेंडर होगा तो उसमें भी क्या इनसाइड में चेंजिंग आएगी, ओनली इनसाइड चेंजिंग आएगी, क्योंकि इनसाइड में भी यहाँ चार्ज रहेगा, इनसाइड चार्ज रहेगा, क्यू डैश रहेगा और पहले क्यू रहेगा। सेम इनसाइड वहां भी ई प्रोपोर्शन आ ही आएगी। इसी ढंग से हम सॉल्व करेंगे। नाउ there are few important questions related with the Gauss theorem.
Question first. If 1,000 lines entering in a surface and 800 leaving the surface, what is the nature of the charge and its magnitude? By the Gauss theorem, total flux is equal to Q upon epsilon naught. Total flux, incoming lines, incoming flux is negative, or outgoing flux is positive. Flux is the number of field lines, that is minus 1,000 plus 800 is equal to Q upon epsilon naught. Q is equal to minus 200 into epsilon naught. Put the value of epsilon naught 8.85 to the power minus 12. We will find out the charge Q is equal to minus 17.7 to the power minus 8 coulomb. This negative sign shows that the nature of the charge is negative. नेगेटिव चार्ज अंदर ज्यादा होगा तभी तो अंदर की तरफ फीड आएगी, ज्यादा लाइंस आएगी. It was the solution of the first question. Now there are the different questions we will discuss here. Question number second. ये सब सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए. इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ चार्ज Q is placed inside a cube, what is the flux through the cube and flux through any surface of the cube? We know that the total flux does not depend upon the position of the charge inside the surface. कहीं भी रखा जाए लेकिन अंदर हो, चाहे सेंटर पर हो चाहे सेंटर के अगल बगल कहीं हो, तो फ्लक्स की वही वैल्यू रहती है. Here total charge enclosed within the surface is Q. So directly phi is equal to Q upon epsilon naught. But in the case of B, flux through any surface, the cube consists 6 surface. किसी क्यूब में 6 सरफेस है, तो हर सरफेस से बराबर फ्लक्स निकलेगा. तो एक सरफेस से Q by 6 epsilon naught, any one surface of the cube. इसी में क्वेश्चन थर्ड, हमने कहा कि अंदर पोजीशन पे डिपेंड नहीं किया, लेकिन अगर वही चार्ज किसी एक कॉर्नर पे रख दिया जाए तो कॉर्नर पे रखने पर कहेगा कि क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा, इतना इनक्लोज होगा. इसको समझने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम कर लो घर में तुम्हारे क्या मैच बॉक्स, माचिस का डिब्बा, उसको एक क्यूबिकल फॉर्म में मान लो क्यूब है या कोई छोटा सा क्यूब ले लो. उसके एक कॉर्नर पे क्या कर दिया, एक कॉर्नर पे हमने रख दिया चार्ज. अब उसको चार्ज रख देंगे तो कैसे उसको पहले बंद करना है. वी हैव टू इनक्लोज द चार्ज. सपोज कर लिया ये क्यूब है, मान लिया क्यूब है, हालांकि क्यूब नहीं लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं. अब चार्ज यहां रखा गया है, सिमिलर सरफेस लेकर यहां रख दें, 2 क्यूब बन गया. एक इधर रख दे, सारा ऐसे हम इसको बंद करेंगे तो इधर रख दिया, इधर 4 क्यूब से ये बंद हो जाएगा. एक यहां रखा, एक यहां रखा, ऐसे 4 रख दिया, बंद हो गया. यहां 4 से ये बंद हो, लेकिन ऊपर खुला है, ऊपर से 4 मैच बॉक्स और रख दो, पूरा का पूरा ये चार्ज बंद हो जाएगा. ऐसे ऊपर रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ऐसे करके रख दिया 4. जब चार्ज रख दिया 1 2 3 4 और 4 ऊपर, तो पूरा क्या बन गया, एक क्यूब बन गया. अब क्यूब के अंदर वह चार्ज इनक्लोज हो गया, तो टोटल चार्ज क्यूब के अंदर इनक्लोज हुआ, तो पहला तो आंसर आएगा क्यूब
क्यू अपॉन 8 ऑप्शन, क्योंकि पूरे जो आठों स्फीयर बना मिल करके एक क्यूब बनाए, बोथ फॉर्मिंग द फ्लक्स क्यू अपॉन ऑफ सारे नॉट। एक से क्या हो जाए, जैसे पहले वाले में वो पूरा क्यूब 8 क्यूब के मिल के फॉर्म में बना है, एक से क्या हो गया क्यू अपॉन 8 ऑफ सारे नॉट। लेकिन उसी में कहा जाए कि फ्लक्स एनी वन फेस ऑफ द क्यूब, जब एक सरफेस से लेंगे तो वहां पर तीन सरफेस क्या हो जाएंगे, तीन सरफेस से फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि फील्ड इज पैरेलल टू एनी थ्री सरफेस, किन्हीं तीन सरफेस के पैरेलल है, तो बाकी रेस्ट में परपेंडिकुलर है। तो तीन सरफेस थ्रू एनी वन सरफेस, तीन सरफेस से 8 q upon 8 of sine naught, one surface से q upon 24 of sine naught. It will be the answer. But important question है सब। ऐसे ही here A B C D is a surface, length breadth A, charge Q is just above the surface at distance A by 2 given in the figure. What is the flux through the surface? एक बहुत सिंपल तरीका है, इसी सरफेस को हमने यहां जूम किया और इस सरफेस के सिमिलर सरफेस को लेकर के एक क्यूब का फॉर्म बना दिया। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस टेकिंग द सिमिलर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द क्यूब। अब देखिए यह क्यूब जो बना इसकी साइड ए हो जाएगी, क्योंकि ए बाई टू इधर ए था, ऊपर भी ए हो गया, लेंथ ब्रेड्थ ए है ही, साथ साथ ए हाइट भी ए हो जाएगी। तो दैट चार्ज विल बी इनक्लोज इनसाइड द क्यूब। इनसाइड द क्यूब अगर इनक्लोज हुआ तो पूरा पूरा फिर क्या रहेगी, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस सरफेस से q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। Here, question number 5. If a ring of radius r, if ring of radius r and charge q is uniformly distributed over it, किसी रिंग पर चार्ज q यूनिफॉर्मली बटा हुआ, एंड स्फीयर, कोई एक a sphere is constructed in such a way that its center lie on the periphery of the ring. The radius of the sphere is also same as the radius of the ring. एक रिंग ले लिया और रेडियस का जिसपे चार्ज दे दिया, उसी सिमिलर रेडियस का एक स्फीयर इस ढंग से बना के रखा, स्फीयर का सेंटर इसके सर्कमफरेंस पे पड़ जाए, पेरिफेरी में। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। देखिए यहां ध्यान से फिगर बनाया गया है, अगर जो हम डॉटेड लाइन से स्ट्रक्चर दिखाए हैं, पूरा पूरा ए ओ डैश इक्वल टू ए ओ इक्वल टू ओ डैश, ये क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा एक पूरा पूरा एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। यानी इस 120 डिग्री के अंदर ही ये चार्ज जो है, यही चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स। 360 में चार्ज था क्यू, तो 120 में क्यू बाई 3। If the charge enclosed within the sphere is q by 3, certainly flux is equal to q upon 3 epsilon naught. That is the answer. Again, in question number 6, there are two figures, 1 and 2. Electric lines are given here. In the figure first, parallel
In the figure first, upward direction. In the figure second, parallel along the x-axis. What is the flux? Through the curved surface. इस फिगर में दो सरफेस है, प्लेन सरफेस है, कर्व सरफेस है. What is the flux through the curved surface in both cases? देखिए यहां पर ये नहीं दिया है कि इस फिगर में कहीं चार्ज है. अरे फीड लाइन तो कहीं से चार्ज रखा होगा, वहां से भी आ जाएगी. तो जब फीड लाइन मान लो यहां कहीं चार्ज ऐसे चली गई, यहां कहीं चार्ज था चली गई, तो जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो टोटल फ्लक्स विल बी जीरो. नाउ देयर आर टू सरफेस, कर्व सरफेस एंड द प्लेन सरफेस. सो flux through the plane surface plus flux through the curved surface is zero. कर्व सरफेस से निकालना है जीरो माइनस प्लेन सरफेस. देखिए प्लेन सरफेस ई डॉट डी एस कॉस ऑफ थीटा, ई डॉट डी एस, देखिए ई डी एस कॉस थीटा. ई यहां दिया है और डी एस एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस पाई आर स्क्वायर कॉस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर डी एस डाउन होगा और ई अपवर्ड है, तो कॉस ऑफ 180 डिग्री इस साइन माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस e pi r square. It is the answer. But in the second case, total flux is equal to zero. Here plane surface, the area and E both are at 90 degree. That is the flux through the plane surface is also zero. So flux through the plane surface plus through the curved surface. Here we have to find out the curved surface. Curved surface 0 minus 0, that is 0. Our last question, if a charge on a cylinder is Q, तो यहाँ पर एक सिलेंडर दिया, दो प्लेन सरफेस A और B और एक कर्व सरफेस याद दिया, दो प्लेन सरफेस ए सी एंड कर्व सरफेस बी. ये अज्यूम कर लिया कि टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज 5. जीरो नहीं कहा, ये मत कहना कि भाई यहाँ पर कोई डायरेक्शन दिया नहीं है, वो अज्यूम कर लिया कि 5 क्या है, टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस. टोटल फ्लक्स कर्व सरफेस से है तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द प्लेन सरफेस. ए यहां दो सरफेस है, ए और सी प्लेन, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि दोनों पर अगर हम लेफ्ट टू राइट फील्ड ले लिए या चल उस पूरे सिलेंडर को चार्ज दिया है तो लेफ्ट में भी राइट में भी ई डॉट डी एस दोनों के बीच का जीरो हो जाएगा. चार्ज यहाँ था, इधर फीड गई, इधर फीड गई, इधर एरिया गई, इधर एरिया गई, तो हो जाएगा 2 देखो 2 फाइव ए प्लस सी एस को 5 कर दिया, 5a प्लस 5b प्लस 5c इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. 2 a plus 5 is equal to q by epsilon naught. 2 a is equal to q by epsilon naught 5, and 5a is equal to half of q upon epsilon naught minus 5. It was the answer. ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम अपने गॉस थ्योरम से रिलेटेड पढ़ेंगे.